دور کسی جنگل میں رانو چڑیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ رانو کا ایک بچہ تو تھوڑا بڑا تھا، لیکن دوسرا بچہ ابھی چھوٹا تھا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ رانو چڑیا کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، لیکن آج شام سے تو اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ میرے پاس آ جاؤ میرے بچوں، مجھے لگتا ہے کہ اب جدائی کا سمے آ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب میں نہیں بچ پاؤں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی سمے میرا سانس رک جائے گا۔ مما ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ پہلے بھی تو بیمار ہوئی تھی نا، تو آپ ٹھیک ہو گئی تھی، آپ اب بھی ٹھیک ہو جاؤ گی مما۔ میرے بچے، سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس دفعہ میرا بھی سمے آ گیا ہے، بس اب نہیں بچ پاؤں گی میں۔ تم میری بات دھیان سے سنو۔ تم دیکھو اپنے بھائی سے بڑی ہو اور کچھ سمجھدار بھی ہو۔ تمہارا بھائی ابھی چھوٹا ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا۔ میری بیٹی، ابھی تو تمہیں بھی ماں کی ممتا کی بہت ضرورت تھی، اور تم تو اس جنگل سے بھی انجان ہو، لیکن تم یہ سمجھو تم پر بہت بڑی آزمائش آئی ہے۔ تم بس ہمت سے کام لینا اور اپنے بھائی کی بالکل اچھے طریقے سے حفاظت کرنی ہے تم نے۔ یہ جنگل کسی کا نہیں ہے، یہاں تمہاری مدد کرنے شاید کوئی نہ آئے۔ خود پر بھروسہ رکھنا اور کسی سے مدد یا سہارے کی امید مت لگانا، کہ جب کبھی تمہیں میری یاد آئے تو چاند کی طرف دیکھ کر مجھے یاد کر لینا۔ ایسے تمہیں اور تمہارے دل کو شانتی مل جائے گی۔ اور اس طرح رانو لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اچانک سے خاموش ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا کے بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی مما تو ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دیدی مما اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ مما بول کیوں نہیں رہی؟ ہاں چھوٹے بھیا، مما سو گئی ہے، اور جب ہم بڑے ہو جائیں گے نا تب مما ہم سے ملنے آئیں گی، ٹھیک ہے؟ دیدی مجھے کچھ کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے میرے بھیا، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آؤں گی، لیکن تمہیں یاد ہے نا مما کیا کہتی تھی؟ مما جب گھر سے باہر جاتی تھی تو وہ ہم سے کیا کہتی تھی؟ یہی نا کہ گھونسلے سے باہر نہیں نکلنا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اب میں جا رہی ہوں باہر، تو آپ نے گھونسلے سے باہر نہیں آنا۔ ہاں مجھے یاد ہے دیدی، میں نہیں نکلوں گا گھر سے باہر۔ اس کی بہن دانا لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ میری مما اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، میں اکیلے نہیں جا سکتی دانے کی تلاش میں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ چھوٹی چڑیا، تم جانتی ہو ہماری اڑان آپ کی اڑان سے بہت تیز ہے، آپ ہمارے ساتھ کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کسی اور کے ساتھ جائیں۔ میں تو کہتا ہوں وہ سامنے طوطا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ جاؤ۔ رانو کی بیٹی اڑتے ہوئے طوطے کے پاس جاتی ہے۔ طوطے انکل، میری مما اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، اور میرا بھائی گھونسلے میں اکیلا ہے، مجھے اس کے لیے اور اپنے لیے دانے لینے جانا ہے، لیکن میں نہیں جانتی آپ دانا کہاں سے لے کے آتے ہو، کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ چھوٹی چڑیا، لیکن میں آج دانے کی تلاش میں نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس دانا رکھا ہوا ہے، اور ویسے بھی میں تو تم سے یہی کہوں گا کہ اکیلے ہی چلے جاؤ، ڈیلی تمہارے ساتھ کون جائے گا بھلا؟ رانو کی بیٹی بہت اداس ہو جاتی ہے اور ایک درخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ماں، تم نے صحیح کہا تھا، اس جنگل میں کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، لیکن مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ بہادری سے اور ہمت سے کام لینا ہے۔ آپ میری مما، آپ نراش نہ ہونا، میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں ضرور اپنے لیے اور اپنے بھیا کے لیے دانے پانی کا انتظام کر لیا کروں گی۔ رانو کی بیٹی کی اپنے مما کے بغیر آج پہلی اڑان تھی، اور اس کو پہلے ہی دن پتہ چل گیا تھا اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کتنی محنت اور کتنی بہادری اور ہمت حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اڑتی ہے، لیکن اس کے دماغ میں اس کا بھائی رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ گھونسلے میں کیسے رہا ہوگا۔ وہ کبھی سوچتی کہ واپس جائے اور اپنے بھائی کو ایک مرتبہ دیکھ آئے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن پھر وہ سوچتی کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کھانا ساتھ لے کر ہی جائے۔ اس سے پریشانی میں ہی وہ ایک ندی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔
वहाँ उसको मकई के दाने मिलते हैं और वो उनको लेकर वापस घोंसले में चली जाती है। उसकी दीदी उसको खाने के लिए मकई के दाने देती है, जिसको खाकर उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाता है। और इस तरह पहले दिन रानो की बेटी अपने लिए और अपने भैया के लिए दाना ढूंढने में कामयाब हो जाती है। मैं अपने भैया को कभी कोई दुख महसूस नहीं होने दूंगी। अब आपने दाना खा लिया है ना भैया, तो अब सो जाओ। रानो की बेटी अपने भैया का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। उसको खाना और दाना पानी लाके देती, उसको बाहर की बातें बताती ताकि वो जंगल से आगाह रहे। और ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानो की बेटी अपने भैया की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करती है और उसका भैया बड़ा हो जाता है और ख़ुद से उड़ना भी शुरू कर देता है। रानो की बेटी ने अपने भैया को बहुत लाड प्यार से पाला था, इसलिए अब वो अपनी बहन को जवाब देना भी शुरू हो गया था। जोजो, तुम आज दोबारा गए थे ना उल्लुओं के पास? तुम्हें पता था ना मम्मा हमें उल्लुओं के पास जाने से मना करती थी। ओहो दीदी, एक तो आप मुझ पर रौब ना जमाया करें, हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाती हैं। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं जानता हूँ क्या सही है और क्या गलत। रानो की बेटी अपने भैया को बहुत मना करती है, लेकिन उसके बावजूद जोजो ने उल्लुओं से दोस्ती कर ली थी और अपनी बहन के घर से बाहर जाते ही वो सीधा उल्लुओं के पास पहुंच जाता था। उल्लुओं को इन दोनों बहन भाइयों का प्यार बिल्कुल नहीं भाता था और उन्होंने सोच लिया था कि इन दोनों बहन भाइयों में किसी तरीके से लड़ाई करवानी है। वो ज़्यादातर जोजो को अपनी बहन के खिलाफ भड़काते रहते थे। जोजो, मुझे लगता है आज फिर तुम्हारी दीदी तुम्हें डांट रही थी और हमारे पास आने से मना कर रही थी ना। मुझे तो समझ नहीं आती है तुम पर इतना रौब क्यों चलाती है और इतना तुम्हें क्यों अपने प्रेशर में रखती है। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो, तो अपनी बहन को तुम सुनाते क्यों नहीं? ऐसे कब तक तुम अपनी बहन के सहारे ही जिंदगी गुजारोगे? आखिर तुम्हें भी तो कुछ करना है ना। ऐसे भी तुम कौन सा अब उसके लाए हुए दाने खाते हो? अब तो तुम खुद भी दाने की तलाश में बाहर आ जाते हो और खुद से ही खा लेते हो। फिर अब किस बात का एहसान है तुम्हारी बहन का तुम्हारे पर? जोजो आहिस्ता आहिस्ता उन उल्लुओं की बातों में आना शुरू हो जाता है। वो ये समझता है कि उसकी बहन बस उस पर रौब जमाती है और ये उल्लू उसके दोस्त और हमदर्द हैं। वो सोचता है कि उसकी बहन उसको समझती नहीं है और ये शायद जो उल्लू हैं ये इसके सारे दुख दर्द समझते हैं। दीदी, हम आज से दाना बांट कर खाया करेंगे। क्या मतलब? क्या मतलब हम दाना बांट कर खाएंगे? इकट्ठे खाना है, समझ आ रही है? मम्मा ने क्या कहा था, हमेशा इकट्ठे और मिलजुल कर रहना है। दीदी, वो बचपन की बातें थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब जो भी हो, मैं आज से दाना अलग खाया करूँगा। उसकी बहन खामोश हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि इससे बहस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये उल्लुओं की ज़ुबान बोल रहा है। अगले दिन जोजो दोबारा उल्लुओं के पास जाता है। जी बताओ, क्या बना? तुमने अपनी दीदी से बात की? हाँ की तो थी, लेकिन दीदी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो तो खामोश हो गई। खामोश तो होना ही था क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होगा ना। और वैसे भी वो जो घोंसला है वो तुम्हारी बहन का है, इसलिए वो खामोश हो गई। धक्के तो तुम्हें खाने पड़ेंगे ना, तुम कहाँ जाओगे? मैं तो कहता हूँ कि दानों के साथ साथ घोंसला भी अलग कर लो। और हाँ, वो घोंसला तुम रखना, छोटे बेटे का हक होता है। तुम्हारी दीदी तो वैसे भी तुमसे कितनी बड़ी है, खुद बना लेंगी अपने लिए कहीं और। अपनी बात पर डट के रहना। सही कह रहे हो, इसीलिए मेरी दीदी खामोश हो गई थी, कोई जवाब नहीं दिया। मैं आज ही जाकर बात करूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हर रोज तुमसे बहस करूं, इसीलिए मैंने आज एक निर्णय लिया है। आज तो मेरा भाई जोजो बहुत गुस्से में है। बताओ तुमने क्या निर्णय लिया है? ये घोंसला आज से या तो तुम्हारा होगा या मेरा होगा। हम दोनों का यहाँ इकट्ठे गुजारा नहीं है। जोजो, कुछ तो शर्म करो, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हो? कैसे मैं तुम्हें घोंसला छोड़ने दूं? ये तुम किसकी जुबान बोल रहे हो? तुम्हारी तो नहीं लगती मुझे ये। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मुझे लगता है मम्मा की सारी बातें भूल गए हो। अब ये मम्मा कहाँ से दरमियान में आ गई हैं? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की, मैंने तुमसे घर अलग करने की बात की है। मैं तुम्हारे साथ इस घोंसले में नहीं रहूँगा, मैंने कह दिया बस। जोजो, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ हाँ बिल्कुल, और मैं इस फैसले से पीछे भी नहीं हटूँगा। ठीक है, मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचने दूंगी, लेकिन तुम्हें तो मेरे वजूद से ही तकलीफ़ हो गई है। मैं फिर यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ठीक है, ये घोंसला मैं तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ। उसकी बहन वहाँ से रोते हुए चली जाती है और एक दरख्त पर जाकर बैठ जाती है। माँ, तुमने कहा था ना
कि जब कभी मेरी याद आए तो चांद की तरफ देख लेना। आज मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी मम्मा। मैंने अपने भैया को पालने में कितनी मेहनत की, लेकिन आज भैया ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने वही किया। तुमने वैसे सही कहा था। मैंने अपनी बहन से जैसे ही घोंसले की बात की तो वो तो मुझ पर चिल्लाने लगी, लेकिन मैं भी फिर डटा रहा और फिर वो खुद ही चली गई। वैसे मैं सोच रहा हूँ इसीलिए मेरी दीदी तुम लोगों से मुझे दूर रखती थी, है ना? अगर तुम्हारा साथ मेरे साथ ना होता तो मेरा क्या बनता? मेरी दीदी तो मुझे ही घर से निकाल देती। अरे अरे, ये क्या दाने किससे पूछ के खा रहे हो? इतनी मेहनत से हम इनको लेके आते हैं इसलिए कि तुम यहाँ बैठकर खाओ। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? आज तक तो तुम यही कहते थे कि ये दाने तुम जैसे मर्जी खा सकते हो। अरे कह दिया तो क्या हुआ? तुम क्या सच में ही खाने लग जाओगे? तुम्हें नहीं पता कितनी मेहनत से जमा किया जाता है सारा खाना? तुम कभी मेहनत करो तो तुम्हें पता चले ना। तुमने तो हमेशा अपनी बहन का लाया हुआ ही दाना खाया है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? जरा होश के नाखून लो। मुझसे इस तरह बात करने की जुर्रत मत करना। अच्छा, एक तो हमारे ही घर बैठे हुए हो और हमें ही सुना रहे हो। वाह, क्या शान है, क्या बहादुरी है। अब निकलो यहाँ से, क्या हम तुम्हें दिखाएं फिर बहादुरी होती क्या है। उल्लू वहाँ पर अपने भाई के साथ था, जबकि जोजो अकेला था। इसलिए जोजो ने वहाँ से निकलने में ही बेहतरी समझी और वो एक दरख्त पर जाकर बैठ जाता है और रोना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि उसने अपनी बहन के साथ कितना बुरा किया। जब तक वो साथ थी, ना उसको खाने की तलाश थी, ना उसको किसी परिंदे का डर था। लेकिन अब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, अकेला पड़ गया था। वो इधर उधर उड़ता है और अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर देता है। जोजो अपनी बहन को बहुत तलाश करता है, लेकिन उसको वो नहीं मिलती। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।